Hello everyone. Today I'm going to start a sample paper in which today we'll solve the questions, 1 mark questions, macroeconomics. First question is value of money multiplier dash. And these options are given increases, decreases, remains unchanged with an increase in CRR. जब CRR में increase होता है तो money multiplier की value पे क्या असर पड़ता है? We know that मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है 1/LRR. तो इसमें हम 2 एग्जाम्पल ले सकते हैं. एक 10% ले सकते हैं CRR, दूसरा इंक्रीज करके 20% ले सकते हैं. तो व्हेन इट इज़ 1/10% तो ये हो जाएगा 10. दैट मीन्स ये 100/1 हो जाएगा. ऐसे ही 100/10, ये 100/10, ये 100/20, तो इट विल बी 5. सो व्हेन LRR और CRR increases, value of money multiplier decreases. So here the answer will be decreases. Another question is define an intermediate good. When we talk about the intermediate good are those goods which are within the boundary line of production, right? That means it can be resale. Those goods we talk about which can be resaled or which are used for further production of the finished products. So these are the intermediate goods. Third, average propensity to consume can never be dash. APC क्या नहीं होता कभी. नाउ इसके साथ हमें सबसे पहले अपना एक फॉर्मूला देखना पड़ता है. APC इज इक्वल्स टू C/Y. C/Y. वी नो दैट कंजम्पशन कैन नेवर बी ज़ीरो. जब कंजम्पशन कभी ज़ीरो नहीं हो सकता तो APC कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता. सो APC कैन नेवर बी ज़ीरो. When we talk about another question, name any 2 quantitative tools to control credit creation in an economy. Although this question has been deleted from your chapter Money and Banking unit, but it is included in chapter excess demand and deficient demand. That's why we have to do this. So 2 quantitative tools. We have studied quantitative tools of RBI bank, the bank rate, repo rate, reverse repo rate, CRR, SLR, open market operations. तो इनमें से कोई भी आप 2 लिख सकते हैं. इसके ऑप्शन में एक क्वेश्चन है व्हाट आर डिमांड डिपॉजिट्स. नाउ इट इज अप टू यू वेदर टू यू अटेम्प्ट क्वेश्चन 1 और द अदर वन. ओनली वन यू हैव टू अटेम्प्ट इन क्वेश्चन नंबर 4. What are demand deposits? Demand deposits are those deposits which can be withdrawable at any time on demand. डिपॉजिट किए जाते हैं किसी भी टाइम आप डिमांड करोगे तो आप इसे विड्रॉ कर सकते हो थ्रू चेक्स. तो आप इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे. द मॉनेटरी पॉलिसी जनरली टारगेट्स टू इंश्योर. मॉनेटरी पॉलिसी जो हम लोग जो RBI लेता है किस लिए लेता है, क्या करता है मॉनेटरी पॉलिसी से? जब भी हमारे यहाँ पे हमारी इकोनॉमी में कोई प्रॉब्लम होती है लाइक इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन. इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन आर द 2 प्रॉब्लम्स व्हेन प्राइसेस आर नॉट स्टेबल. ईदर प्राइसेस आर मच हायर और प्राइसेस आर मच लोअर ड्यू टू द डिमांड एंड सप्लाई इनइक्वालिटी. सो मॉनेटरी पॉलिसी हैज़ बीन टेकन बाय RBI जस्ट टू गेट द प्राइस स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी. सिर्फ प्राइस को स्टेबल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी यूज़ होती है. नाउ लेट्स कम टू अदर क्वेश्चन. In an economy, break-even point and equilibrium point may lie at the same level of income. We know that break-even point is a point where C is equals to Y. That means total income is consumed. So here savings is 0. And when we talk about the equilibrium point, we know that equilibrium point is equals to S is equals to I. So here when at break-even point savings are 0 and at equilibrium point saving is equal to investment. So investment will also be 0 क्योंकि saving 0 है तो investment भी 0 हो जाएगी. If we talk about the next question, it is a true or false question. A statement has been given. Managed floating exchange rate is decided by the market forces but remains within a specific range as decided by the central bank. We know that floating means flexible. That exchange rate which is decided by the market forces of demand and supply of foreign currency, right? It is floating. But why it is written managed? Because central bank intervenes in it when the exchange rate is much higher or much below. तो उसको एक specific range में करने के लिए central bank intervene करता है, right? So it is true. When we talk about the next one, the formula of the to calculate primary deficit is equal to, although this is not in syllabus, it has been deleted for you people only just because of this corona crisis. But if the question is there, you can solve it. Primary deficit is equals to fiscal deficit minus interest payment. Next question is you have to choose the correct pair. कौन सा correct pair है? तो अब इसके ना हम लोग देखते हैं. ये BOP का question है. Export of software to France.
सॉफ्टवेयर एक गुड है या सर्विसेज में ले सकते हैं कि ये हम लोगों ने बाहर एक्सपोर्ट किया. एक्सपोर्ट मीन्स पैसा अंदर आएगा, इनफ्लो होगा. इनफ्लो इज ऑलवेज रिकॉर्डेड एट द क्रेडिट साइड ऑफ BOP. तो हियर इन्होंने यहाँ पे लिखा है डेबिट साइड, तो ये तो सबसे पहली चीज़ गलत हो गई. नो, दिस पेयर इज नॉट करेक्ट. सेकेंड पेयर इज इम्पोर्ट ऑफ मशीनरी फ्रॉम चाइना. व्हेन वी इम्पोर्ट द मशीनरी, मशीनरी मीन्स फिजिकल विजिबल आइटम, दैट मीन्स हमारा एक करंट में आएगा और इम्पोर्ट हो रहा है का मतलब हम पैसे बाहर भेज रहे हैं, और पैसे बाहर भेजने को हम डेबिट में लिखते हैं. तो ये कहाँ पे आएगा? डेबिट साइड ऑफ करंट अकाउंट, बट दे हैव रिटन कैपिटल अकाउंट, तो ये भी गलत पेयर है. नेक्स्ट इज रेमिटेंसेज टू रिलेटिव्स स्टेइंग अब्रॉड. बाहर रिलेटिव रह रहे हैं, हम उनको रेमिटेंसेज भेज रहे हैं. रेमिटेंसेज इज वन साइडेड, हमें ये पता है करंट अकाउंट में आना चाहिए. अब बाहर पैसा जा रहा है आउटफ्लो, तो ये क्या हो जाएगा? डेबिट. तो डेबिट साइड ऑफ करंट अकाउंट. लेट्स सी, इट हैज़ बीन रिटन डेबिट साइड ऑफ करंट अकाउंट. येस, इट इज़ द करेक्ट पेयर. But now to check whether we are right or wrong, we should also see the last one also कि investment by Apple phones firm in India. उन्होंने हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की. इन्वेस्टमेंट्स आर ऑलवेज रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट. अब पैसा हमारे यहाँ पे आया, उन्होंने पैसा डाला है यहाँ पे, तो वील रिकॉर्ड इट इन द क्रेडिट साइड. तो लेट अस सी इट, क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट. तो यहाँ ये गलत हो गए, कैपिटल होना चाहिए था, तो ये भी गलत है. तो करेक्ट आंसर इज सी. लास्ट क्वेश्चन इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन मिड डे मील scheme running in the government state run schools is the type of dash expenditure in the government budget. गवर्नमेंट के दो टाइप का एक्सपेंडिचर होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर इन विच गवर्नमेंट एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर नॉट अफेक्टेड, एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर्स ऑन विच लाइबिलिटी एंड एसेट्स आर अफेक्टेड, राइट. सो हियर यू कैन सी दैट when government is spending on मिड डे मील स्कीम, मिड डे मील स्कीम में गवर्नमेंट खर्चा करे तो ना तो गवर्नमेंट के एसेट्स पे कोई फर्क पड़ा ना लाइबिलिटी पे, बट खर्चा हो रहा है, तो इट विल बी रिकॉर्डेड इन दी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट बजट. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू हाउ यू हैव टू सॉल्व दी 1 मार्क क्वेश्चंस. इसमें सभी मिलेंगे आपको, फिल इन द ब्लैंक्स, मैचिंग, MCQs, right? So till here, if you face any problem, you can ask me anytime. Thank you. God bless you.